Okay, we'll continue. हम जारी करेंगे. So we were talking about 2 Corinthians 5:21. हम देख रहे थे कि 2 कोरिन्थियस का 5 का अध्याय 21 वचन. For he made him और उसने उसे who knew no sin जो पाप से अज्ञात था, to be sin for us, जो हमारे लिए पापी ठहराया, that we might become the righteousness of God in him. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके. Amen. आमेन. So I'll explain this one more time and then we'll give time to memorize this verse. एक और बार मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम इस पे मनन करने वाले हैं. So we know that God is so holy. हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत पवित्र है. He is so holy, there is no sin in him. इतना पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है. And he cannot tolerate sin. और वो पाप को सह नहीं सकता. But at the same time, he loves us. लेकिन उसी समय पे वो हमसे प्रेम करता है. He cannot let us go. वो हमें जाने भी दे नहीं सकता. So the only way for God to bring us back to him, एक ही जरिया हमें फिर से लाने के लिए, to give us is to give us his righteousness. एक ही जरिया हमें लाने के लिए वो है उसकी धार्मिकता जो हमें मिली. There is no man who is able to bring us back to God. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमें परमेश्वर करीब लेकर आ सके. You remember Isaiah 59 verse 2, your iniquities have separated you हम from your God. हम देखते हैं यशायाह किताब इसका 59वां अध्याय, आपके पाप ने आपको परमेश्वर से दूर किया है. Remember that? आपको स्मरण है? So when we were in sin, we were away from God. जब हम पाप में थे तब हम परमेश्वर से दूर थे. But God wanted to get us closer to him. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि हम उसके करीब रहे. And there was no other option. उसके पास कोई संकल्प नहीं था. So he came down to this world. तो वो नीचे आया, दुनिया में आया. And this is what happened. और ये ऐसा हुआ. And the word says he made him. The Father God made Jesus. He made him who knew no sin. Jesus did not know any sin. To be sin for us. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था उसको पापी ठहराया, ताकि उसके पापी ठहरने से हमें धार्मिकता प्राप्त हो सके. That we may become his righteousness. Amen. ताकि हम उसकी धार्मिकता में आ सके. Okay. आमेन. Is it clear? क्या आपको सही समझ में आ रहा है? Okay. Shall we try memorizing this? I'll give you 30 seconds. 1 minute. Okay. Okay. आपको मैं 1 मिनट देना चाहता हूँ. क्या आप इस वचन को याद कर सकते हैं? Those of us watching online, please try and memorize this verse. जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस वचन को स्मरण कर सकते हैं. Okay, let's try that. Okay. 2 Corinthians 5:21. 2 कोरिन्थी 5:21. I'll give you a free option. Say with me. Okay. He made him who knew no sin to be sin for us, that we might become his righteousness in him. Okay. Okay. Who wants to go? Who wants to try? Don't worry. All of you will get a chance. Okay. कौन कोशिश कर रहे थे? चिंता मत कर, सबको मौका दिया जाएगा वचन कहने के लिए. We will help you. Okay, we will help you. हम आपकी मदद भी करेंगे. We'll help you. Come on. हम आपकी मदद भी करेंगे. Come on, step out in faith. विश्वास से कदम उठाइए. That person raising hand. Yeah, we'll come. We'll come. I think we'll finish this column, then this column will come. हम आएंगे आपके पास, पहले यहाँ से खत्म करेंगे. Yeah, just go ahead. You can just shout it out. Yeah. अब वहां से बोल सकते हैं, चिल्लाकर बोल सकते हैं, ऊंची आवाज से बोल सकते हैं. Brilliant. Wonderful. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Go ahead. और कोई कहना चाहता है? Yeah, here. I think here. Yeah. She asked first. Yeah. आपको आपसे. Yeah. Yes, fix. हाँ, आप. Yeah, good job. बहुत अच्छे. Go ahead. Yeah. आप. Wonderful. बहुत अच्छे. Yeah.
Yeah, we might become the righteousness of God. Good job. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत Good job. Good job. Yeah. Yes, brother. okay. Yeah, wonderful. And also, when you say this, please remember, please remember this, God did not make Jesus sinner. He made him who knew no sin to be sin for us, not sinner. आपको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जब परमेश्वर का वचन हम ये पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को पापी नहीं बनाया, पाप ठहराया. Amen? आमीन. So, Jesus is never a sinner. यीशु मसीह पाप नहीं है, He पापी knew नहीं. no sin, उसने पाप नहीं किया, but he became sin for us. लेकिन वो हमारे लिए पाप बना. So, the punishment for our sin was upon him. जो हमारे गुनाह का सजा था वो यीशु मसीह पे लादा गया. So, there is a difference between becoming sin and a sinner. और उसमें अंतर है पापी और पाप बनना. So, Jesus was not a sinner, यीशु मसीह पापी नहीं था, but Jesus was imputed with this sin of us, so that the punishment was upon Jesus, so that we would become the righteousness of God. हमारे पापी के जरिए यीशु मसीह पाप बना. Amen? Okay, let's say this one more time. Everybody, let's go. एक और बार हम कहेंगे, सब साथ में कहेंगे. 2 Corinthians 5:21. 2 कोरिन्थी 5:21. He made him who knew no sin to be sin for us, that we may become the righteousness of God in him. Amen? हिंदी Yeah, please. हिंदी में हम कहेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था उसे पापी ठहराया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. Amen? बहुत अच्छे. Now, in our natural senses, it might be a little too big to comprehend. सो एक स्वाभाविक रीति से अगर हम सोचने लगे तो हमारे लिए, हमारे समझ से ये परे है. How, oh God, you love me so much that you just sacrificed your son, that a sinner, a wretched sinner as I could come to you. हम कभी सोचते हैं कि परमेश्वर तुम मेरे लिए, तुम मुझसे इतना प्यार करते हैं कि तो अपने इकलौते पुत्र को मेरे जैसे पापी के लिए पाप ठहराया. That's the truth. वो सच्चाई है And we need to just embrace the truth. और हमें उस सत्य को अपनाना है. Now you are the righteousness of God. अब परमेश्वर की धार्मिकता हो तुम. Meaning you have right standing with God. इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के साथ में सही रीति से खड़े हो. Amen? आमीन. Now imagine this is God सोचिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर है, and this is us. ये हम हैं. Right? And such a horrible sinner. बहुत दूरदर्शी से पापी है So this is the barrier. और ये हमारे लिए एक अड़खलता है. And I cannot reach God because of my sin. और ये पाप जो हमारे बीच में बंधन है, इसके जरिए वो भाई हमसे रीच नहीं, मतलब हमारे परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है. Yeah, understanding? समझ में आ रहा है आपको? And the more sin I do, the more I go away from God. जितना पाप मैं कर रहा हूँ उतना मैं दूर जा रहा हूँ. But God said, no, I want him to be near me. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे करीब आए. So he sent Jesus उसने यीशु मसीह को भेजा, and he destroyed sin. तो उसने क्या किया? पाप का नाश किया. All the punishment जो भी उसका सजा था, for all the sins that you and I did, जो पाप तुमने और हमने किया, that was upon Jesus. यीशु मसीह के ऊपर था He removed the sin. और उसने निकाल दिया. Now we have right standing with God. अब हम परमेश्वर के साथ में सही रीति से खड़े हैं. Now let me tell you, sin is gone. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप चला गया. Can I go to God? क्या परमेश्वर के पास मैं आ सकता हूँ? अभी There is nothing stopping me. आ सकता हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं है अभी यहाँ पर. Amen? I आमीन. can go to him anytime. मैं कभी भी जा सकता हूँ. I can go to him anytime. I can talk to him anytime. मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी बात कर सकता I हूँ. don't have to take an appointment. मुझे कोई उसे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है. And I don't need any other mediator. मुझे कोई भी मध्यस्थी करने वाला जरूरत नहीं है अभी. Oh, can you please tell God to do my thing? क्या जाओ आप प्लीज मेरे लिए परमेश्वर से कहो ऐसा. No need. किसी का Free आवश्यकता नहीं. access. आप फ्री है, मतलब स्वतंत्र है आप. Just open the door and go and talk to him. आपको दरवाजा खोलिए और जा सकते हैं, बात कर सकते हैं. Amen? आमीन. He made a new and living way according to the book of Hebrews. इब्रानी किताब के अनुसार उसने हमारे लिए एक नया द्वार खोला है. You can go to him. आप उसके बाद जा सकते हैं. Four implications, four applications of this. जो अनुकरण हम करना चाहेंगे. Number 5, okay, number 1. 5 है, There is no condemnation. उसमें कोई दोष नहीं. Because you are the righteousness of God.
कोई दोष नहीं इसलिए कि आप परमेश्वर के धार्मिकता हो। There is no condemnation against you. तुम्हारे प्रति कोई दोष नहीं है अभी। Nobody can point finger at you and say you are a sinner again, कोई आप पे दोष नहीं लगा सकता और कह सकता है कि आप पापी हो, because you are the righteousness of क्योंकि God. आप परमेश्वर के धार्मिकता हो। You are justified. आप परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। Amen. आमेन। Romans chapter 8 verse 1. रोम का 8वां अध्याय पहला वचन में ऐसा लिखा है, Read at the top of your voice. बहुत ऊंची आवाज से आप पढ़ सकते हैं, जोर से, okay? जोर से। Romans 8:1. There is therefore no condemnation in Christ. okay, any one person who can read it with the maximum volume here without mic. कोई एक व्यक्ति जो ऊंची आवाज से Go पढ़ over this. सकता Go है। ahead. Come on. जाइए जाइए। So the word says, Hmm. there is therefore now no condemnation. यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, अब से जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। No condemnation for those who are in Christ जो Jesus. मसीह में उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं। Amen. आमेन। We receive it by faith. हम विश्वास से ग्रहण करते हैं, So we need to embrace this by हमें faith. इसे ग्रहण करना चाहिए, Like by faith. विश्वास के जरिए ग्रहण करना चाहिए। Lord, you have taken away the sin. कि उसने परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर कर दिया है। I can come to you. मैं कभी भी आ सकता हूँ, I can talk to you. मैं आपसे बात कर सकता There हूँ। is nothing yet that can separate me from you. आप मुझसे, आप मुझको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। Amen. So what is the practical application of this? Number one, there is no condemnation. वास्तविकता क्या है कि कोई दोष नहीं है मुझे अंदर। So you live without a sense of guilt, shame and तो condemnation. अब से आपको पाप का ये जो है स्मरण भी आना चाहिए। Let me add one more point here. इसमें मुझे और एक पंक्ति जोड़ना Now है। what happens in our life is, हमारे जीवन में जो होता है वो ये है, as we said before, things in the past. हमने देखा था कि भूतकाल में जो हुआ था, Sometimes we do not have the assurance that if God has completely forgiven. कभी कभी हमें ये भरोसा नहीं होता या विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से क्षमा किया है। And we begin to think, God, I'm not sure, God, if you have forgiven. और हम कहते कि संकोच करते कि परमेश्वर तूने मुझे पूरी रीति से क्षमा किया है कि Or नहीं। that particular sin, that is too much, God. I think you have not forgiven. प्रभु वो जो पाप था बहुत गहरा था, शायद आपने वो क्षमा नहीं किया है। Psalm 103 verse 3 says, भजन संहिता 103 उसमें 3 में ऐसे कहा गया, He forgives all your iniquities. और बाइबल ऐसा कहता है उसने आपके सारे अधर्म को क्षमा किया है। Can you say this with me? क्या आप कहना चाहेंगे मेरे साथ में? He forgives all your iniquities. उसने मेरे सारे धर्मों को क्षमा किया है। How? Not sare, sare. नॉट Okay. सारे, सारे। Can we try that again? As much as you can prolong, please prolong. Okay? जितना आप खींचना चाहते हो उतना आप खींच सकते हो, तान सकते हो, All of us should say this, okay? लेकिन सभी को कहना है He forgives all your iniquities. उसने मेरे सारे धर्मों को क्षमा किया है। All. सारे, He has not left anything. कोई कुछ बचा नहीं अभी। So don't be under guilt. अभी आप शर्म में मत जियो, Go to him with confidence. परमेश्वर के पास भरोसे के साथ जाइए। So number one, there is no condemnation. सबसे पहला है कि कोई दोष नहीं हम पर। Number two, दूसरा बात, we have boldness to enter in God's presence. हमारे पास हिवाई है कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सके। We can go to him with confidence. हम हिवाई के साथ में अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानी किताब इसका 4 अध्याय 16 वचन। Hebrews 4:16. इब्रानी किताब इसका 4 अध्याय 16 वचन। Let us therefore come boldly to the throne of grace, that आइए- we may obtain mercy and find grace to help in time of need. कोई हिंदी में पढ़िए? 4:16 4 verse 16. Let me read. The word says, let us therefore come
boldly to the throne of grace. यहाँ पे ऐसा कहा, हिवाय के साथ में अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ. So we don't go to God like, God, are you really upset with me? Can I come to you now? हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम मुझसे नाराज है कि मैं आ सकता हूँ अभी? Have you forgiven completely? Can I enter in? क्या तुम मुझे पूरा क्षमा किया है कि मैं आ सकता हूँ आपकी उपस्थिति में? The word says, come boldly. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हिवाय के साथ में आइए. Come boldly. हिवाय के साथ में आइए. Amen. आमेन. So I have access to enter the presence of God. I can go to him with boldness. मैं हिवाय के साथ में प्रभु की उपस्थिति में जा सकता हूँ अभी. Because I know my sins are forgiven. क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है. It's done. खत्म हो चुका है. Amen. आमेन. So we just read this word, Romans chapter 8 verse 1, correct? हमने अभी पढ़ा था रोमी की किताब इसका 8वां अध्याय पहला वचन में. There is one translation which is called the Passion translation. सो टीपीटी ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, Case is closed. आपका जो बोलता है न्यायालय में आपका जो केस खत्म हो चुका है. Nothing is pending. कुछ बचा नहीं है अभी. Now you can go to him अभी आप जा सकते हैं यीशु with मसीह के पास. boldness. हिवाई के साथ में. I'll give you one more verse. आपको और एक वचन मैं देना चाहता हूँ. Ephesians 3:12. इफिसी किताब इसका 3रा अध्याय 12 वचन. Ephesians 3:12. इफिसी की किताब इसका 3रा अध्याय 12 वचन. In whom we have boldness and access with confidence through faith in him. जिससे हमको उस पर विश्वास रखने से हिवाय और भरोसे से निकट आने का अधिकार है. I'll read that again. In whom we have boldness and access. हम देखते हैं कि हिवाय के साथ में विश्वास रखने से भरोसे से निकट आने का अधिकार है. With confidence. Amen? With confidence. भरोसे से. Okay? We have boldness to enter into the presence of God. हमारे पास हिवाय है उसके निकट आने के लिए. Now let me, if any of you has got Hebrews chapter 4 in your hand, please go to that portion one more time. हम अगर किसी ने हिब्रू की किताब इब्रानी की किताब इसका 4था अध्याय 16 वचन खोला है तो वहां पे जा सकते हैं आप. I'll show you something very interesting there. वहां पे हम देखते हैं कि Hebrews 4 that 16 that हम one. देखते हैं कि इब्रानी की किताब इसका 4था अध्याय 16 वचन में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं. मैं आपको कुछ बातें वहां पे बताना चाहता हूं. Now just before, when the writer of the Hebrews talks to us about the entering boldness part, please read verse 15. जिस तरह हमने पढ़ा कि 16 वचन में लिखा है उसके पहले मैं 15 वचन पढ़ना चाहता हूं. हमारे ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. Yeah, so the word says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. So we have a high priest who can sympathize with our weakness, who understands our weakness. साधारण भाषा हमारे पास ऐसा कोई महायाजक नहीं है जो हमारे दुख को नहीं समझ सकता, बल्कि ऐसा महायाजक है जो हमारे दुख को समझता है. Oh, listen to this very carefully. आप अच्छे से सुनिए. The Lord that we serve, जो परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते हैं, he understands our weaknesses. तो उसको पता है कि मेरी कमजोरी क्या है. So we said we are sanctified, we are justified, we are made righteous. हम देखते हैं कि हम पवित्र किए गए, धर्मी ठहराए गए, धोए गए. Now when we live this life, जब हम जीवन को जीते हैं, there are temptations in the world. हमारे यहाँ पे एक हमारी परीक्षा होती है. And there are chances that we may make mistakes. वहां पे कुछ संकल्प है या फिर कुछ ऐसा है जहां पे हम परीक्षा में गिर सकते हैं हम. Yes or no? Right? There are chances that we may make mistakes. वहां पे संभावना है हम परीक्षा में गिर सकते हैं. But the word says, लेकिन वचन ऐसा कहता है, you have a God who understands your weakness. लेकिन हमारा वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर, आपके पास ऐसा परमेश्वर है जो आपके निर्बलताओं को समझता है. So don't tell that, okay, that is a weakness of my flesh, I'll just manage with this. आप ऐसा मत कहिए कि वो मेरा निर्बलता है, मैं ऐसे जीऊंगा. The word says, therefore come boldly. So वचन ऐसा कहता है, इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हिवाय के साथ में आइए. Because he understands your weakness. क्योंकि वो आपको समझता है, आपकी कमजोरी को समझता है. So don't stay far from God. उससे दूर मत रहिए आप. So come to him. उसके पास आइए. Now what happens in our life is, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा होता है, we think that big pastors are also involved in this.
तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग भी इसमें शामिल है। Oh, big leaders, they also tell lies. तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो पुजारी है या नेता है वो भी ऐसे झूठ बोलते A हैं। little bit of sin is okay. एक छोटा सा पाप सही है, कोई दिक्कत नहीं। God will not care about that. परमेश्वर उसके बारे में शायद ध्यान नहीं देता होगा, But remember, He is a holy God. लेकिन याद रखे, स्मरण रखे कि उसको सारे बातें याद है। He cannot withstand sin. तो वो पाप के प्रति मतलब नम्र नहीं हो सकता। So He says, come, let me clean you. तो वो कहता है कि मेरे पास आइए, मैं आपको धोकर साफ करना चाहता हूँ। So don't compromise with your weaknesses. तो आप पाप के साथ में समझौता न करें। Amen. आमेन। So tell the person sitting next to you, don't compromise with your weaknesses. आपके बाजू में उनसे कहिए कि पाप के साथ समझौता न करे। I think that sister is sitting simply there. Yeah, please, someone tell her. Okay. मेरे ख्याल से वो बहन ऐसे बैठे, कोई तो नहीं कहिए। Okay. Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हो? Don't compromise with your weaknesses. निर्बलता के साथ में समझौता न करें। The moment you understand this is your weakness. जिस दिन आपको समझ में, जिस समय आपको समझ में आता है कि नहीं, मेरी निर्बलता है। What does verse 16 say? लेकिन 16 वचन क्या कहता है? Come boldly. हिवाई के साथ में आइए। Come boldly to the throne of grace. हिवाई के साथ में, अनुग्रह के सिंहासन के पास हिवाई के साथ में आइए। And the next word says, where you will find grace and mercy. वहां पे लिखा गया आपके अनुग्रह और दया प्राप्त होगी। Let's read that one more time. एक और बार पढ़े। Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. हम देखते हैं कि हिवाई के साथ में परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए ताकि हम पर दया और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारे सहायता कर सके। What is the time of need? आवश्यकता के समय क्या है? The time when you are tempted with problems, seductions. हम देखते हैं कि जब पाप के परीक्षा में हम पढ़ रहे हैं, That is the time you need help. उस समय में हमें मदद की आवश्यकता है। Yes or no? Are you hearing? क्या आप सुन रहे हो? So when the moment you need help, don't say that, okay, let me just enjoy the pleasure of the world one more time. जिस समय आपको सहायता की जरूरत है, ये समय मत सोचो कि दुनियादारी में निभाऊंगा। No, don't say that. Come boldly to the throne of grace where you may find grace and mercy. आप ऐसा मत सोचिए, आपको परमेश्वर के सामने हिवाई के साथ में आना है ताकि आपको निर्बलता में उसका अनुग्रह प्राप्त हो सके। Amen. Don't compromise with your weaknesses. आप अपनी निर्बलताओं के साथ समझौता न करें। I was talking to a person I think around 1 year back, 1.5 years back. एक साल पहले की बात, एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। And this person was going through an addiction in his life. तो उसके जीवन में कुछ स्वभाव से वो गुजर रहा था। And I was having this difficult conversation with him. तो उसके साथ में एक गंभीर संभाषण में करने लगा। And this person was into this addiction and he's saying, I'm not able to come out. तो कहा ये लत से मैं बाहर आना चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ। I spoke about all the things which is available in the word of God to set him free from from the sin. मैंने उसको सारे वचन कहा जो वचन उसके लिए लाभदायक थे। And finally he said, no, this is a weakness of my flesh. तो उसने कहा ये मेरा शरीर की दुर्बलता है। And he said there are leaders, there are pastors who are struggling with the same problem. तो वो ऐसा कहने लगा कि ऐसे बहुत सारे पास्टर है, बड़े पासवान हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी ऐसे छोटे छोटे मोटे पापों से गुजर रहे हैं। And God is still using them. परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। Then why don't I continue? So, मैं जारी क्यों नहीं रखूं मेरे पाप को? I said, no brother, don't do this. मैंने कहा भाई ऐसा ना करे। I said, this is not how God has designed us. तो इस तरह परमेश्वर ने हमें बनाया नहीं है। You need to know that you have freedom from sin. तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको पाप से स्वतंत्र किया है। And I told him this is what you can do practically. तो मैंने कहा कि वास्तविकता में आप क्या कर सकते हैं। He didn't take it well. तो वो उसने ऐसे लिया। Almost around 1 year later, तो एक साल के बाद he fell into a major sin. He fell into a major sin. हाँ, इसके बाद में क्या हुआ, एक बड़े पाप में गिर गया। Why did that happen? क्यों ऐसा हुआ? Because he thought it was okay. तो उसको ऐसा लगा कि पाप करना कोई बुरी बात नहीं। And again I went and spoke to him. मैं फिर से गया, उससे कहा You can still come back. मैं कहा कि तू आ सकता है परमेश्वर के पास। God is merciful. परमेश्वर अनुग्रहकारी He है। loves you. ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। I love you. मैं तुमसे प्रेम I'm करता ready to help you. हूँ। मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। But it is difficult for that person to come back. I do not know why. उसके लिए बहुत दिक्कत की बात थी कि फिर से परमेश्वर के प्रति फिर से आने के लिए। Amen. आमेन। So don't compromise with your weaknesses. तो आपके कमजोरी के साथ में आप समझौता ना करें। Don't say that it is the weakness. Everybody does this. आप ये ना कहा कि हर कोई करता है, ये मेरी निर्बलता है। A little bit of pornography is okay. तो गलत चित्र देखना ये सही है। A little bit of alcohol is okay. थोड़ा बहुत पीना है सही है। Nobody is knowing this. कोई जानता नहीं है। And we also say, God is using me. और फिर आदमी कहता है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। When I pray, people are healed. जब मैं प्रार्थना करता हूँ लोग चंगे हो रहे हैं। That will continue to happen.
तो ये होते रहेगा। because God doesn't take away his gifts, और परमेश्वर कभी अपने वरदानों को छीन नहीं लेता आपसे, but that will not help you in long run. तो लेकिन आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, We will fail miserably. तो आप बुरी तरह से गिर जाओगे। And everything which is hidden in secret, God will expose. जो कुछ गुप्त में छुपा है एक दिन वो सबके सामने प्रकाशित होगा। Amen. आमीन। So don't compromise with your weaknesses. लेकिन आप अपने कमजोरी के साथ में समझौता So न when we करें। go through weaknesses, जब हम कमजोरी से जाते हैं, go to Hebrews chapter 4 verse 16. जब हम कमजोरी से जाते हैं तो इब्रानी किताब इसका 4 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे हम। Come boldly to the throne of परमेश्वर grace, के सिंहासन के सामने हिवाई के साथ में आइए, where you may find grace and mercy. जहां पे तुम पे दया अनुग्रह की प्राप्ति हो। Amen. आमीन। Okay, number 3. तीसरा, We reign in life and exert dominion over life situation. हम इस जीवन में राज्य करते हैं और परमेश्वर के साथ में अधिकार भी रखते हैं। So we're talking about the implication of justified and being made righteous. हम देख रहे हैं कि जो कि परमेश्वर की धार्मिकता के साथ में हमें क्या लाभ हो सकता So है। we said first thing, there's no condemnation. हमने कहा था कि हमारे पे कोई दोष नहीं है। And we said we have boldness to enter his presence. हमने देखा कि हिवाई के साथ में उसकी उपस्थिति में हम जा सकते हैं। And number 3, we reign in life. हम देखते हैं कि जीवन में राज्य करें। Amen. आमीन। So I'll just explain that with one verse. हम एक वचन के साथ में आपको समझाना चाहते हैं। Look at Romans chapter 5 verse 17. हम देखते हैं कि रोमी का किताब इसका 5वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। रोम 5:17। For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। So when you have received the righteousness of God, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, you also have received dominion over your life situation. आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि अपने जीवन पे राज्य करें। You remember this verse which we learned a little while ago, 1 John 4:4. He who is in you is greater than he who is in the world. हमने ये वचन को स्मरण किया था, आपको याद है क्या? पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय 4 जहाँ पे लिखा गया है कि जो मसीह में जो हो जयवन से बढ़कर है। Amen. Remember that? He who is in you is greater than he who is in the world. आप में जो है उससे बढ़कर जो संसार में है। Amen. So when we face life situations, we face it like that. जीवन में कठिनाइयों को जब हम गुजरते हैं तो ये वचन हमें स्मरण करना चाहिए। You don't face it like, okay, God, again one more problem. आप ऐसे उसका संघर्ष में ऐसा सामना नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर एक और बार कठिनाई, Oh God, I'm not able to get up. परमेश्वर में अभी खड़ा नहीं हो सकता। The word says, he who is in you is greater than he who is in the world. लेकिन वचन ऐसा कहता है जो आप में रहता है वो उससे बढ़कर जो संसार में रहता है। And 2 Corinthians, I think I'm right. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 says, now thanks be to God who always leads us in triumph and victory. हम देखते हैं कि दूसरा अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमें जय के उस समय लिए फिरता है। Always. हमेशा। Either you go through good life situation or bad life situation. चाहे अच्छे स्तर से जाए या बुरे स्तर से जाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको लिए फिरता है। You can reign in life. लेकिन आप अपने जीवन में राज्य कर सकते हैं। Amen. आमीन। So that is the third implication. तीसरा अनुकरण हम देख सकते हैं। Number 4. चौथा, We confront Satan as king and master over him and his demon. We have authority over Satan. हम हमारे पास परमेश्वर अधिकार दिया है शैतान के प्रति और दुष्ट आत्मा के प्रति। Amen. So let's look at one verse here. आइए हम देखते हैं वचन को पढ़ते हैं हम। Assuming, okay, let's start with this verse. I think we'll see if we have time. Romans chapter 6 verse 14. हम देखते हैं कि रोमी के इसका 6वां अध्याय 14 वचन। Romans 6:14. Can you read? Yeah. 6:14। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Can we also read 1 John chapter 5, I think verse 8? 5:8. No, 4:8. Destroy the work of the devil. 5:4. 1 John 5:4. 5:4. Okay, overcomer. Yeah, please. 1 John 5:4. जो पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 4 वचन, जो
कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। Amen. So whatever is born of God overcomes the world. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। So because you are in Christ Jesus, क्योंकि आप परमेश्वर में नए जन्मे हो, you have authority over all the schemes of the enemy. तो आपके पास अधिकार है शैतान के हर एक चालों के ऊपर। Amen. Over every tricks of the enemy, you have authority. शैतान के हर एक चालों पर आपका अधिकार है। Have that understanding. तो ये समझिए। And that is another implication. So ये समझना चाहिए, ये दूसरा अनुकरण है। Okay, and one last implication. अंतिम, we are careful to maintain continual fellowship with God and abiding in the place of righteousness. हम देखते हैं कि हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो संगम है परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप वो हमेशा बनाए रखना है। Yeah, so because we are the righteousness of God, क्योंकि हम परमेश्वर के धार्मिकता है, always remember to continue fellowshipping with Him. हम हमेशा ये देखना चाहिए कि उसके साथ में सहभागिता हमेशा बनाए रखना है हमें। Walk with Him. उसके साथ में चलिए। Because He is the light, we can walk in the light in Him. और देखते हैं कि वो प्रकाश है, इसलिए हम प्रकाश में चलना जरूरी है। Amen. आमेन। So don't say that, okay, I am justified, I am sanctified, but I am going to live my own life. ऐसा मत कहिए कि मैं पवित्र हूँ, धर्मी हूँ, अभी मैं अपना जीवन जीता हूँ। That doesn't work. ऐसा काम नहीं कर सकता। If you want to live in righteousness, walk with Jesus. अगर आपको धार्मिकता में जीना है तो परमेश्वर के साथ में आपको चलना है। You cannot say that I was born again in 1974, now I live my own life. 1974 में मैं जन्म लिया था, अभी मैं ऐसे चल जाऊंगा, ऐसे चलेगा नहीं। नहीं होगा. नहीं होगा। We have to walk with the Lord. हमें परमेश्वर के साथ में चलना है। Walk in fellowship with the Lord. उसके साथ में सहभागिता बनाए रखना है। Amen. आमेन। Okay, so we'll just go through these implications one more time. फिर से एक बार हम इस बातों को दोहराएंगे। 5 implications. Number 1, there is no condemnation. 5 अनुसरण। पहला है हम में कोई दोष नहीं है। Can you repeat after me? There is no condemnation. क्या आप दोहरा सकते हैं कि मैं अभी मेरे पे कोई दोष नहीं है? People at the back, everybody, please say this with me. जो पीछे है वो भी कहे। There is no condemnation. मेरे में कोई दोष नहीं है। I have boldness to enter the presence of God. Boldness. Let's try that again. मैं हिवाए के साथ में परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाऊंगा। I have boldness to enter, right? Number 3. I reign in life. मैं जीवन में राज्य करूंगा। And चौथा, I have authority over Satan and his demons. चौथा है कि मैं शैतान के सारे चालों पे मेरा अधिकार है, दुष्ट आत्मा पे मेरा अधिकार है। शैतान के हर एक चालों पे और दुष्ट आत्मा पे मेरा अधिकार है। And number 5. पांचवा, I'll be careful to maintain my fellowship with the Lord. इंग्लिश बोलिए। I'll be careful to maintain my fellowship with the Lord. इंग्लिश में भी बोलिए ताकि मैं फिर हिंदी को बोल सकता हूँ। Yeah, you can repeat this after me in English first. I'll be careful to maintain my fellowship with the Lord. मैं सावधानी बरतूंगा कि परमेश्वर के साथ में मेरा सहभागिता बना रहे। Amen. Okay, let's go to the next section. हम देखते कि दूसरे अध्याय में जाएंगे हम। Chapter 5. Are you with me so far? 4. Yeah. चौथे अध्याय पे हम आ चुके हैं, 14 क्रमांक पर हम आ चुके हैं। Now we're going to start talking about a little bit about being sanctified. अभी हम पवित्रता के बारे में बात करने वाले हैं। So yesterday, कल when we said we are not sinner, God calls us as saints. We mentioned, remember? हमने कल, आपको याद है कल हमने कहा था कि परमेश्वर हमें पापी नहीं, हमें पवित्र करके बुलाता है, संत करके बुलाता है। And it was a little difficult for us to comprehend. So बहुत लोगों को दिक्कत हुआ ये बात समझने के लिए। So let's look into God's word and try and understand that part. हम देखते कि परमेश्वर के वचन को, ताकि इन बातों को हम अच्छे से समझ सके। Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse 30. We read this earlier, but let's read that again. हम देखते कि पहला कोरिन्थियों का पहला अध्याय 30 वचन में देखते हैं। But of him you are in Christ Jesus, you who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. हम देखते हैं कि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। So listen to this carefully, that the word says we are sanctified in the Lord.
ध्यान से सुनिए कि वचन ऐसा कहता है कि हम उसके द्वारा पवित्रता हुए। So the word sanctification means to make holy, हम यहाँ पे देख, पवित्रता का अर्थ है कि पवित्रता बनना, पवित्र बनना। or you can say to set apart. हम देखते हैं कि पवित्रता का अर्थ ये भी है कि हम अलग किए गए हैं। Okay, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Okay. Now imagine in your homes, most likely there would be certain glasswares or plates which are kept aside only for special guests. आप सोचिए, आपके घरों में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, ऐसे पात्र होते हैं, वो अलग रखे होते हैं, विशेष समय पर ही वो बाहर निकाले जाते हैं। How much ever you ask your mother, she won't give you in that. कितना भी आप अपनी मम्मी को पूछो तो आपकी माँ कभी वो बर्तन आपको देती नहीं है। Yes or no? हाँ या नहीं? So it's like something precious. ऐसा बहुत अनमोल है ऐसा। And if you ask her, she would say, no, 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 that's not for you, son. तो हम कुछ मांगे तो नहीं नहीं वो तेरे लिए नहीं है बेटा। That is when our senior pastor comes. जब वो हमारे मुख्य पादरी आएंगे तब हम उनके देंगे। Right? So that is for a special reason. तो उसके लिए कुछ विशेष बातों के लिए रखा गया है, Because it is set apart for a purpose. क्योंकि उसे एक विशेष भाग के लिए अलग करके रखा है। Amen? आमीन। One another example. और एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। Imagine a girl is going to get married. हम देखते हैं कि एक बहन जो मतलब एक स्त्री जो विवाह करने जा रही है, Now she has a lot of dreams and hopes to get married. तो बहुत स्वप्न देखती है, आशा रखती है कि उसका ब्याह होने वाला है। And when the date for the wedding is finalized, जब हम देखते हैं कि शादी का जो तारीख है वो निर्धारित किया गया है, she decides, I'm going to wear this gown or this sari. तो कहता है कि नहीं वो साड़ी पहनना है, वो गाउन पहनना है उस दिन पर। Then she thinks about it, makes plans about it. सो वो नियोजन करती है, योजना बनाती है पहनने के लिए। And if it is a gown, she will go to the best designer. तो अगर वो गाउन है तो एक अच्छा डिजाइनर के पास जाएगी वो। Or sari, I don't know, something like that, right? सारे हमको पता नहीं, कुछ ऐसा रहेगा। Right? So it is so special for that person. लेकिन बहुत विशेष होता है। And they would invest so much time for that, choosing that and all of that. सो बहुत समय लेती है, वो ध्यान देती है, चुनती है, बिनती अलग करती है। Do you think that this girl would wear this sari or gown and walk around the house and clean the house? तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि वो बहन या स्त्री वो साड़ी या गाउन जो शादी का है वो पहन के घर में झाड़ू या पोछा मारेगी? No, no, no. नहीं नहीं। The only time she would wear is just maybe for trials. This is how it looks. अगर वो उसी समय पहन सकती है जब उसको ट्रायल करना हो या देखना हो कैसे आ रहा है ये नहीं। But otherwise it is kept safe. लेकिन बाकी तो आम तौर पे वो उसे अलग रखती है। And if someone comes and asks, hey, can you give me that? अगर कोई आके पूछता है क्या वो दे सकती है क्या मुझे? Milega. मिलेगा क्या? आई डोंट नो व्हाट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। So she said, no, no, no. This is for this very special purpose. नहीं नहीं नहीं, ये बहुत विशेष कार्य के लिए रखा गया है। Amen. So if you can think from that girl's side, how preciously she sees that object, that sari or gown. हम देखते हैं कि उस बहन के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि वो जो गाउन है, जो साड़ी है, किस विशेष रूप से वो गाउन को देख रही है। She has set that apart. उसने अलग करके रखा है उन कपड़ों को। Yes or no? हाँ या नहीं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? No, don't imagine about your wedding. That we'll figure out later. आप Come अपने back. ब्याह के बारे में, विवाह के बारे में न सोचे अभी। Come back, okay? Come back. फिर से आ जाइए। Okay. Now, that is for a very special reason, correct? एक मुख्य विशेष कार्य के लिए रखा गया उसे। Now, God says, I have set you apart for a purpose. परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आपको एक विशेष कार्य के लिए अलग करके रखा हूं। Does it make you happy? आपको खुशी नहीं है क्या? So God says, I'm calling you out परमेश्वर कहता है कि मैं आपको बुला रहा हूं because I have a purpose for you. क्योंकि मेरे लिए आपके पास योजना है। I remember that verse, 1 Corinthians 6, 9 to 10. We are washed, sanctified, justified. हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थियों 6:9-10 में लिखा है कि हम लोग धोए गए, हम पवित्र किए गए हैं और अलग किए गए हैं। He washed us and he did not send us back to the dirt. उसने धोया और हमें फिर से वही स्थान पे नहीं भेजा। He set us apart. उसने हमें अलग करके रखा। So we are different. अब हम अलग है, विभिन्न है। So say this with me, I am different. मैं अलग हूं, मैं विभिन्न हूं, I am set apart. मैं अलग किया गया हूं। One more time, I am set apart. मैं अलग किया गया हूं। God has set me apart. परमेश्वर ने मुझे अलग करके रखा है।
Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हो? So, because God is righteous and God is holy, परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, and He wanted a people who would be blameless in His presence, और वो चाहता है कि जो उसके सम्मुख आए वो निर्दोष रहे. and He sent Jesus for us and He set us apart. उसने यीशु मसीह को भेजा और हमें अलग करके रखा. Okay, so let's look at a couple of other verses. हम दो और वचन को देखेंगे. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थी पहला अध्याय दूसरा वचन. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, परमेश्वर की called to be saints. ओके, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं. Now what is God calling you? पवित्र. What is God calling you? परमेश्वर क्या नाम से बुला रहा है आपको अभी? Amen. हिंदी में क्या लिखा है? पवित्र. Amen. He is calling you saints. वो आपको पवित्र करके बुला रहा है. So that's what you are in the spiritual realm. वो आपका असलियत स्तर है आत्मिक जीवन में. You are the saint of God. आप पवित्र जन हो परमेश्वर की दृष्टि में. But looking at our own lives, we may not feel like calling that. जब आप ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है शायद. But this is what God is calling you. लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे बुला रहा है. Look at this word. Let's हम look इस at that वचन को one more देखेंगे. time. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Just read the first part. परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं. Now, I'm sure that you would have read about 1 Corinthians. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने शायद पढ़ा होगा. When it comes to chapter 4 and chapter 5, we see the situation of people there. तो हम देखते हैं कि चौथा अध्याय पांचवा अध्याय वहां पे देखते हैं कि स्थिति कैसी है वहां पर. They're all operating in the gifts of the Holy Spirit. हम देखते हैं कि वो सब लोग वरदान में कार्य कर रहे थे, But there's a lot of sin in them. लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारा पाप हुआ. But what is the name that God has given them? लेकिन परमेश्वर ने क्या नाम दिया? Saints. पवित्र जन. That is our position in Christ. वो हमारा स्तर है. So, I'll also just address what one of our brothers asked in the break. Okay. तो मैं एक और बात को मैं बताना चाहता हूँ जो ब्रेक के समय एक भाई ने मुझसे पूछा था. We are not becoming saints because of the good works we do. हम पवित्र जन नहीं है इसलिए कि हमने अच्छे काम किए हैं. We do good works because we are saints. हम अच्छे काम इसलिए नहीं किए हैं, अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि हम अच्छे हैं, इसलिए अच्छे काम कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के जन हैं. समझ में आया? Okay, I'll say that one more time. We are not becoming the saints of God or righteousness of God by doing something. We are the saints of God. We are the righteousness of God so that we do the good works. Okay. हम अच्छे काम इसलिए नहीं कर रहे कि हम धर्मी बनने वाले हैं, इसलिए हम अच्छे काम कर रहे हैं कि हम धर्मी हैं. आमीन. समझ में आया सबको? One more time, I think you should say that. हम अच्छे काम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें धर्मी बनना है, हम अच्छे काम इसलिए कर रहे क्योंकि हम धर्मी हैं. We are already made righteous. That's why we do. हम इसलिए अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि हम धर्मी हैं. Because if we try to do, okay, listen to this is important. If we try to do something and become the righteousness or the sanctified of God, the Bible says all your works are like filthy rags before me. हम देखते हैं अगर हम अपने अच्छे कार्यों से धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं तो परमेश्वर कहता है आपकी सारी धार्मिकता उस गंदे चिथड़े के समान है. All our good works are like nothing in front of God. हमारे सारे अच्छे कार्य परमेश्वर के सम्मुख कुछ नहीं है. We cannot match with the standard of God. हम परमेश्वर के स्तर से मेल नहीं खा सकते. Where is the standard of God's holiness and what are the works we are doing? परमेश्वर के जो पवित्रता है उसका स्तर क्या है और हमारा कार्य का स्तर क्या है? It doesn't match. ये मेल नहीं खाता.
But God says, I'm making you my righteousness. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपना धर्मी बनाऊंगा, I'm making you the saint. मैं तुमको पवित्र जन I'm बनाऊंगा, sanctifying you. मैं तुमको पवित्र करूंगा, Now you do the works. अब तुम जाके कार्य करो। All the works which you do, you are not doing it to become the righteousness of God, but because you are the righteousness of God, you do the works. अब जो कुछ कार्य कर रहे हो धर्मी बनने के लिए नहीं, बल्कि आप धर्मी हो इसलिए अच्छे कार्यों को आप कर रहे हो। Is it a little too much? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ज्यादा हुआ? Okay. Okay, let's try that again. Just think about this. Okay, a person who has done a crime. हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने गुनाह किया। Imagine he has murdered someone. कल्पना करें उसने किसी का कत्ल किया। What if he goes to the court and say, you know what, court, honorable court, I will feed 100 people. Will you let me go? अब सोचिए एक व्यक्ति है जिसने किसी का कत्ल किया और न्यायालय में जगह अदालत में जाके जज से कह रहा है कि न्यायाधीश मैं 100 लोगों को खाना खिलाऊंगा लेकिन मैंने कत्ल किया है, क्या उसे बरी कर देगा वो? Will it match? कुछ हो सकता है ऐसा, मेल खा सकता है? No, even in this world, if it doesn't match, इस दुनिया में ये मेल नहीं खा सकता, how can it match with the standard of God? तो कैसे परमेश्वर के साथ में वो मेल खा सकता है? God is so holy. परमेश्वर बहुत पवित्र है। And if you try to do something to please him, अगर कुछ भी आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, the Bible says that those are just like filthy rags. It cannot match with my holiness. वो सारे चितड़े हैं, मतलब गंदे कपड़े के समान है। So all our righteous deeds are like filthy rags हमारे in the presence of सारे God. धार्मिक काम परमेश्वर के सम्मुख गंदे कपड़ों के समान है। So we cannot do anything to get the righteousness or sanctification. हम ऐसे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते जिसके जरिए परमेश्वर के धार्मिकता में प्राप्त हो सके। But God said, you know what? I'm going to make you the righteousness. पता है परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुमको धर्मी बनाऊंगा। And from that place of being the righteousness of God, being sanctified, you do the good works. फिर परमेश्वर कहता है कि उस स्तर से, जिस स्तर से मैंने तुमको धर्मी ठहराया है, फिर तुम धर्म के काम करो। So you can take the pressure off. तो अभी तुम्हारे पे कोई दबाव नहीं है। Oh God, if I don't feed the poor this week, you will be mad at me. No. तो आप ऐसा मत सोचो अगर मैं अभी गरीब लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा तो शायद परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। आप पे कोई दबाव नहीं है अभी। He is already pleased in you. वो आपसे पहले से ही प्रसन्न है। And all we are doing is just an outflow of our position in Christ. जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रेम के बहाव में हम कर रहे हैं। Amen. आमेन। So we are saints in Christ. हम परमेश्वर में पवित्र जन हैं। Amen. आमेन। So say this with me. God calls me as saint. हिंदी में कहिए, परमेश्वर मुझे पवित्र जन करके पुकार रहा है। God has set me apart. परमेश्वर ने मुझे अलग करके रखा है। Amen. There is one more small point I want to mention here, and then I think we'll take a break. और एक पंक्ति को मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। So the word says we are set apart for God. वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। Imagine there is a huge project in the country. हम देखते हैं कि एक बड़ा योजना है इस दुनिया पर। Okay, and our prime minister decides, I need some people to do this project. अब देखते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने ये निर्धारित किया कि इसके लिए मुझे कोई व्यक्ति चाहिए। And imagine he calls you. और सोचो उसने आपको चुना वो कार्य करने के लिए। Can you tell me your name, brother? The one sitting near to the pillar. आपका नाम बताइए ब्रदर। अंशु। Anshul. अंशु। So imagine from the PM's office is calling Anshul. आप सोचिए पीएम के ऑफिस से अंशु को कोई कॉल आ रहा है। Anshu, the call is coming from your favorite prime minister. अंशु, आपका जो प्रिय मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री है उसके पास से आपको एक बुलावा आ रहा है, कॉल आ रहा है। I have a plan. मेरे पास एक योजना है। I want you to work with me. मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ में कार्य कर। What would you say? आप क्या कहोगे फिर? Okay, by the way, the call is verified. It is not fake. लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये कॉल जो है वो कोई फेक कॉल नहीं है, ये सही कॉल है, गलत Because कॉल we are नहीं है। living in that time and age, right? We cannot believe anything. Okay, now this is verified. Okay. ये कॉल सही है, कोई गलत नहीं है। So what would you do? अब क्या करोगे?
what do you think he would do? आप क्या सोचते हो ये क्या करेगा? Maybe he'll be jumping in that place up and down. मैं सोचता हूँ वो उछाल करेगा. Hey, the prime minister called me. वो ऐसा बोलेगा, अरे प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया. Hey, I'm not eligible for that. अरे मैं उसके योग्य नहीं हूँ. But he says he has a plan. लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए उसके पास योजना है. And he says he will give me everything which is needed for that plan. और वो कहता है कि मुझे जो भी जरूरत है सब कुछ वो देगा. And he's telling me, catch the next train and come. और वो कहता है कि दूसरा ट्रेन पकड़ के आ जाओ. Yes or no? Yes or no? हाँ कि नहीं? He would be very excited. अब बहुत एक्साइटेड है. And now God says, I have set you apart. परमेश्वर कहता है अब बहुत उत्साहित है. Oh, who is God? परमेश्वर कौन है? CEO of the universe. दुनिया का मालिक. Can you say an amen? आमेन. He calls you. He calls you by your name. आपको आपके नाम से पुकार रहा है. Hey, I have a plan for you. उसके लिए आपके लिए उसके पास योजना है. Are you on board with me? Can you come with me? क्या आप उसके साथ में आओगे? And everything which you need, I will give you. और जो कुछ आपको चाहिए मैं सब कुछ दूंगा. But you will say, God, I don't have the skill set. आप कहेंगे मेरे पास कोई कौशल्य नहीं है. God said, I am the one who is going to train you. मैं वो हूँ जो आपको ट्रेन करूंगा या प्रशिक्षण करूंगा. I will take away everything which is not needed in your life. मैं सब कुछ निकालूंगा जो आपके जीवन में जरूरत नहीं है. And I will give you whatever you need for this. मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आपको जरूरत है. Because this is my project. क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा कार्य है. Can you say an amen to this? आमेन. क्या आप आमेन बोलेंगे इस बात पर? Amen? आमेन. He's calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है. And because of that, he has set you apart. इसीलिए उसने आपको अलग करके रखा है. So we cannot have interaction like others. क्योंकि हम दूसरे की तरह वार्तालाप नहीं कर सकते. Amen. So for now, we'll just pause here and we'll continue on that same thread after यहाँ the पे break. थोड़ा ठहर जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर जारी रखेंगे. Okay. So we are set apart. हम अलग किए गए हैं. Are you all happy? क्या आप सब खुश हैं? Amen. So take a break and come back. We'll talk about this. हम ब्रेक लेंगे फिर से आके जुड़ेंगे. Amen. Thank you.